So let us start again. Ionic equilibrium means equilibrium between the ions. Ions and non-ionic compounds में जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम. जिस भी इक्विलिब्रियम में आयन्स इन्वॉल्व हो दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल electrolyte. So any substance which can conduct electricity in its molten state or in its aqueous solution, that is called an electrolyte. For example, there is NaCl. Now, strong electrolyte and weak electrolyte. So the electrolyte which dissociate completely in aqueous solution, that is called strong electrolyte, and the one which dissociates to certain extent, to some extent, that is called weak electrolyte. Now for weak electrolyte we have degree of dissociation. And what is degree of dissociation? It is denoted by alpha, and it is number of moles or molecules undergoing dissociation divided by total number of moles or molecules, and that is called degree of dissociation. Now there are different acid base concepts. So first concept is Arrhenius concept. The acid is the one which gives H plus ion in its aqueous solution, and base is one which gives OH negative ions in its aqueous solution. So HCl, HNO3, H2SO4, they are giving H plus ion, and such acids are called protonic acid or protic acid. So protonic or protic acid means which gives proton. Now sodium hydroxide, KOH, calcium hydroxide, they are Arrhenius base because they give OH negative ions in aqueous solution. Now Bronsted-Lowry concept. According to Bronsted-Lowry concept, acid is one which donate H plus ion, and base is the one which accept H plus ions. For example, we have HCl and ammonia. So HCl will give H plus ion to ammonia, so that HCl become Cl negative. So this acid gives Cl negative, and that is called conjugate base. And ammonia is a base. When H plus ions are added to it, that become ammonium ion, and it is called conjugate acid. So conjugate acid base pair, they differ by one H plus ion. So HCl is an acid and its conjugate base is Cl negative. So HCl Cl negative is conjugate acid base pair. NH4 plus and ammonia, that is another conjugate acid base pair. And one more thing, strong acid has weak conjugate base, like HCl is strong acid. So this strong acid has Cl negative as conjugate base, so this is always weak. So HCl is strong acid, Cl negative is weak conjugate base. Same
case ammonia, if it is considered as weak base, then NH4 plus is a strong acid. Means it is vice versa. Strong acid has weak conjugate base and weak acid has strong conjugate base, and vice versa. उल्टा हो जाए, strong base has weak conjugate acid and weak base has strong conjugate acid. So acid, when H plus ion is removed from the acid, that gives conjugate base, and when H plus ion is added to base, we get conjugate acid. Now next is Lewis concept. So according to Lewis concept, acid is one which accept electron pair, or we can say the one which is electron deficient, and base is one which donate electron pair. Acid जो है it accept electron pair, and base जो है that is donating electron pair. For example, BF3. So in BF3, you know, boron has 6 electrons. Boron has 6 electrons. So ammonia give lone pair to the vacant orbital of boron, and therefore leads to the formation of a coordinate bond, and in this way Lewis acid accept electron pair and Lewis base donate electron pair. और ये हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट भी है, BF3 sp2 hybridized, ammonia sp3 hybridized. Now in this case both boron and nitrogen has sp3 hybridization. और हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करने आती है ना बच्चों? उसके लिए क्या करते हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और जितने लोन पेयर हैं उनको ऐड करते हैं. अगर दोनों का सम 2 आता है तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3. देखो CO2 और SO3 दे आर ऑल्सो लुईस एसिड्स. अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, बट इसमें क्या माना जाता है कि कार्बन जो है और यहाँ सल्फर दैट गेट्स पॉजिटिव चार्ज. कार्बन यहाँ सल्फर, तो दे आर लुईस एसिड्स. वैसे ही SiCl4, इसमें पाई बॉन्ड की वजह से ये लुईस एसिड है, और पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. SiCl4 भी लुईस एसिड है क्योंकि सिलिकॉन हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, बट CCl4 कैनॉट. CCl4 is neither acid nor base. Now pH. So pH is negative log
of H3O plus concentration. Now Kw is ionic product of water. तो आपको पता है कि वाटर में जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं दे प्ले द गेम ऑफ gaining and losing H plus. There is H plus ion transfer from one water to another continuously. So देखो ये जो H2O H plus accept करेगा that becomes H3O plus, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या हो जाएगा OH नेगेटिव. सो Kw is product of the concentration of H3O plus and OH negative. तो इनका प्रोडक्ट आता है 10 raised पर -14 at 298 केल्विन. याद रखना 298 केल्विन होगा तभी ये 10 raised पर -14 होता है, अदरवाइज इट मे बी 10 raised पर -12 at 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इट मे बी 10 raised पर -12. ठीक है. सो एक्चुअली 10 raised to power माइनस, जी बेटा, yes, pH is temperature dependent beta, because when you increase the temperature what happened, more water molecules dissociate, more H plus ion, more OH negative ions are there, it remains neutral, but pH and pOH both will decrease. Like if Kw is 10 raised per -12, so here pKw becomes 12. pKw क्या हो जाएगा 12. तो pKw अगर 12 हो जाता है तो दैट मीन्स न्यूट्रल सोल्यूशन में pH और pOH बोथ आर 6. दोबारा बोलो बेटा. नहीं 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 ऐसा नहीं है ना. ओके. तो 298 केल्विन पे इट इज 10 raised पर -14. सो न्यूट्रल सोल्यूशन में H3O प्लस और OH नेगेटिव 10 raised पर -7 हो जाएंगे. सो pH becomes 7. So pH and pOH both equal to 7 at 298 Kelvin for water. अब जैसे pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, वैसे pOH क्या होगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव. pKw क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ KW. pKa क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka. pKb क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kb. एंड pH प्लस pOH that is equal to pKw and it is equal to 14 at 298 Kelvin. अब pH क्या होता है 14 माइनस pOH, या pOH क्या होता है 14 माइनस pH. हाँ बेटा. कम अगेन. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. क्या बोल रहे हो आप. pKa और pKb हाँ हाँ. Ka is dissociation constant of acid और Kb is dissociation constant of base. और मैंने आपको इतना सा ये बताया कि अगर
P किसी के आगे भी लगा है, मान लिया कहीं है Px, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ x, ये बात करी। इतना सा बताने के लिए ये मैंने सब लिखा है। Kb is dissociation constant of base. Now Ostwald, जी बेटा, Ostwald dilution law, and this Ostwald dilution is law is for weak electrolyte only. Let us say AB is a weak electrolyte. So AB को वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, A plus aqueous, B negative aqueous. Initially, let us say C is the concentration of the salt electrolyte. So at equilibrium क्या हो जाएगा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन्स अल्फा आउट ऑफ 1, तो सी में से कितना कम हो जाएगा, सी अल्फा। सो इफ 1 ए बी इज डिसोसिएटेड तो वी गेट 1 ए प्लस 1 बी नेगेटिव। सो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा, दैट इज सी अल्फा एंड सी अल्फा। सो के बिकम्स ए प्लस इंटू बी नेगेटिव डिवाइडेड बाई ए बी। सो इट इज सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा। और अगर बहुत ही वीक तो के ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे के क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी लेस देन 1 and 1 minus alpha is equal to 1. So K is equal to C alpha square now, and alpha becomes equal to under root K upon C. अब ये जो K है, अगर एसिड है ये तो क्या हो जाएगा, ये Ka, बेस है तो क्या हो जाएगा Kb। तो देखो फॉर वीक एसिड Ka equal to C alpha square, for weak bases Kb equal to C alpha square. So alpha is equal to under root Ka upon C, और वीक बेस के लिए अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Kb अपॉन C. सो स्ट्रेंथ अगर आपको कंपेयर करनी है इन्हीं दो एसिड्स की तो यू कैन कंपेयर देयर, जी बेटा। Strength means how easily an acid can give H plus ion, how readily. Strength means how strong is the acid. So that depend, if degree of dissociation is high, that means it is a strong acid. So strength depends upon degree of dissociation, and it also depends upon dissociation constant, but square root of dissociation constant. So strength of acid 1 divided by strength of acid 2 is equal to alpha 1 upon alpha 2 and is equal to under root Ka1 upon Ka2. Now, what is the relation between Ka and Kb? Let us say Ka is dissociation constant of acid, Kb is dissociation constant of conjugate base. So Ha, let us say Ha is acid, when dissolved in water, we get H3O plus and A negative. So Ka, that is dissociation constant of acid, is equal to H3O plus concentration into A negative concentration divided by Ha concentration, and water is pure liquid, so there is no need to write its concentration.
अब इसका HA का कॉन्जुगेट हमने ले लिया बेस, तो HA का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, A नेगेटिव। अगेन A नेगेटिव को वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बन जाएगा, HA प्लस OH नेगेटिव। सो KB इज इक्वल टू HA इंटू OH नेगेटिव डिवाइड बाई A नेगेटिव, और H2O तो प्योर लिक्विड है। तो इस तरह से Ka आ गया ऑफ एसिड एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो वी गेट H3O प्लस इंटू OH माइनस, and that is equal to Kw. So Ka into Kb, that is equal to Kw. अब अगर मैं लॉग लूँ दोनों साइड, तो आपको पता है कि माइनस लॉग लेने से हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस माइनस लॉग ऑफ Kb, क्योंकि लॉग Ka प्लस लॉग Kb का माइनस साइन है, तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज माइनस लॉग ऑफ Kw, सो इट बिकम्स Pka प्लस Pkb, and that is equal to Pkw, and this is minus log of 10 raised by minus 14, so 14 log 10 is 1, so that is equal to 14 at 298 Kelvin. So this is the relation between Ka and Kb. Now buffer solution. तो बफर सोल्यूशन जो है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो pH चेंज ना होने दे, रजिस्ट करे the change in its pH on adding small amount or even small amount of acid or base or on dilution. Now acidic buffer, so there are acidic buffer, basic buffer, simple buffer. These acids buffer, basic buffer are एसिडिक और बेसिक बफर जो हैं, दे आर कॉल्ड मिक्स्ड बफर, और दूसरा होता है एसिड सिंपल बफर, जिसमें दोनों एसिड का और बेस का आयन होगा उसमें, जैसे आपने लिखा अमोनियम एसीटेट, तो वीक एसिड और वीक बेस दोनों का सॉल्ट। Now acidic buffer, so it is a mixture of weak acid and its salt with strong base, for example acetic acid and sodium acetate, और इसके लिए जो इक्वेशन यूज होती है दैट इज दिस वन, इसको याद कर लेना, इट इज इम्पॉर्टेंट। pH इक्वल टू pKa प्लस log of salt upon acid concentration. So this is Henderson equation for acidic buffer. वैसे ही बेसिक बफर, तो मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो POH जो है दैट इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस। pH क्या होता है,
pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, POH क्या होता है, pKb प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस, और pH इक्वल टू 14 माइनस POH। और बफर कैपेसिटी जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इट्स pH, कि कितने मोल्स एसिड या बेस के ऐड किए और उससे कितना pH में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। नाउ बफर एक्शन, तो कैसे बफर एक्ट करता है, एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट है। अब एसिटिक एसिड जो है वो क्या देगा, एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन, और एसिटिक एसिड इज इन इक्विलिब्रियम विद एसीटेट एंड H प्लस आयन। सोडियम एसीटेट दैट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सोडियम एसीटेट क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि HCl ऐड करने से क्या हुआ, क्या लिखा है मैंने, एनीबॉडी कोई एक्सप्लेन कर? वेरी गुड, क्योंकि लीच टेलीजेस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर इक्विलिब्रियम में हम प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, अगर रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है। तो HCl ऐड करने से क्या हुआ, हाँ जी, केस 1 के ऊपर कहाँ ले, एसिडिक बफर में क्या होता है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट होता है, मतलब एसिडिक बफर मींस वीक एसिड, तो वीक एसिड मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, दिस इज वीक एसिड। हाँ हाँ, और ये क्या है, सॉल्ट, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो सॉल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिड वीक है, तो वीक एसिड जो है वो डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड एसिड जो है दे आर इन इक्विलिब्रियम, और जब HCl डालेंगे तो H प्लस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, और इसको बोलते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कि अगर कोई कॉमन आयन हमने डाल दिया उस इक्विलिब्रियम में, है ना, तो क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और जो डिसोसिएशन है वीक एसिड की वो सप्रेस हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या हुआ, H प्लस आयन और कम हो गए, जितने डाले थे वो ही सारे कंबाइन करके क्या कर देंगे, कम कर देंगे उसमें। अब ये बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हमने डाला, पर याद रखना कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल देना है, थोड़ा सा आपने डाला तो क्या होगा, क्या किया है मैंने, बताओ। सर ये बफर सॉल्यूशन में आपने NaOH डाला, क्या बोल रहे हो, हेलो? हाँ, बफर सोल्यूशन में NaOH डाला, हाँ हाँ, तो क्या होगा कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड।
अगर OH नेगेटिव डालते हैं तो OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, वो जो H प्लस आयन है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और एक्स्ट्रा H प्लस आयन आ जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम ये फॉरवर्ड जाएगा, उसमें इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया था, इसमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो pH remains same. Now this is also very important, salt hydrolysis. So when a salt is added in water, तो salt अगर डालोगे आप वाटर में तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन या OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज अगर हो सॉल्ट डालने से, तो दैट मीन्स सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड। अगर किसी सॉल्ट को वाटर में डालने से H प्लस और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आए तो दैट इज कॉल्ड salt hydrolysis. If we have salt of strong acid and strong base, the salt of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis. क्यों? क्योंकि strong acid या strong base डालने से salt जो है strong acid strong base का, उससे Na प्लस OHCl नेगेटिव के अराउंड वाटर आ जाते हैं और H प्लस और OH नेगेटिव आयन पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो याद रखना कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। नाउ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। हाँ बेटा, यस बेटा, हाँ, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला बोल रहा था मैं, ओके। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, जैसे NaCl ही है, तो अगर NaCl को वाटर में डालेंगे तो वाटर के H प्लस या OH नेगेटिव आयन डायरेक्टली दे डू नॉट कंबाइन विद Na प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि इसके Na प्लस और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये बोले कि Na प्लस और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव आयन, एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। उनमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। रीज़न जो है वो ये है कि अगर Na प्लस है, ये किससे जुड़ेगा, OH नेगेटिव से, Cl नेगेटिव किससे जुड़ेगा, H प्लस से, तो NaOH कैसा एसिड है, ए बेस है स्ट्रॉन्ग, HCl कैसा एसिड है स्ट्रॉन्ग, तो वो तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। तो H प्लस और OH नेगेटिव आयन जो है वो जितने थे उतने रहे ना। बट अगर मेरे पास ऐसा है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है बट बेस वीक है, अब मैंने अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड था वाटर में डाला तो क्या बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो H प्लस आयन जितने थे वाटर में उतने रहेंगे,
इतने सोल्यूशन में थे, बट जो OH नेगेटिव है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में रहता है ना, अनडिसोसिएटेड भी होगा और डिसोसिएटेड भी होगा। तो OH नेगेटिव, अब क्या होगा कि H प्लस आयन ज्यादा होंगे, OH नेगेटिव आयन कम, तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। OH नेगेटिव आयन कैसे ज्यादा हो जाएंगे? H प्लस रहेंगे ना उतने ही OH नेगेटिव आयन कम हो जाएंगे, क्योंकि जितने वाटर में H, बेटा NH4OH में OH नेगेटिव आ कहां से रहे? OH नेगेटिव है वाटर से आए ना बच्चे, जितने H प्लस थे उतने ही OH नेगेटिव थे, है ना वाटर में। अमोनियम क्लोराइड डालने से क्या हुआ कि OH नेगेटिव आयन जो है कुछ तो इसके साथ चिपके रह गए, तो कुछ OH नेगेटिव आयन कम हो गए, बट H प्लस उतने ही रहे, तो ओवरऑल H प्लस ज़्यादा हुए ना। तो ऐसा सोल्यूशन जो है दैट बिकम्स एसिडिक सोल्यूशन, और इसकी pH होती है <7। और इसमें हाइड्रोलाइज हुआ क्या? किसने हाइड्रोलाइज किया? कैटायन ने। कैटायन ने वीक बेस बनाया जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा अमोनियम क्लोराइड डालने से, बट जो OH नेगेटिव है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, क्योंकि कुछ OH नेगेटिव आयन जो जुड़ गए NH4OH से, राइट। और इसका pH निकालना हो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट रिलेशन ही याद रखो, देयर इज नो नीड टू गो थ्रू द डेरिवेशन। तो 7 से कम है तो हमने लिख दिया 7 माइनस, और ये होता है हाफ ऑफ pKa प्लस log C, माइनस हाफ ऑफ pKa प्लस log C। Yes, concentration of the salt. Yeah. Now salt of strong base and weak acid. तो salt strong base और weak acid के salt को water में डालेंगे तो एक तो बनेगा एसिटिक एसिड। कैसा एसिड है ये? और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो OH नेगेटिव तो उतने रहे, बट H प्लस आयन कम हो गए, तो हम क्या लिखेंगे कि OH नेगेटिव, H प्लस आयन इज लेस। तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा हो गया? इट इज अ बेसिक सोल्यूशन, और एनायन हाइड्रोलाइज हुआ तो दैट इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और pH जो है दैट इज ग्रेटर देन 7, pH is greater than 7, so it becomes 7 plus half pKa plus log C। और अगर दोनों ही वीक हो, एसिड भी और बेस भी, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम एसीटेट, तो अमोनियम एसीटेट जो है उसमें क्या हो जाएगा? pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, इट इज 7 प्लस हाफ
पी के ए माइनस पी के बी। ये रिलेशन याद रखने हैं। नो जी बेटा, इट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। इसकी जो पीएच होती है दैट इज ऑलमोस्ट 7, क्योंकि पी के ए वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी के बी वैल्यू। नाउ solubility product. So actually if we go on adding solute in water, तो एक टाइम आएगा when solution becomes saturated, no more solute can be dissolved, and if we dissolve then equivalent amount of solute comes out. तो इसको इस तरह से लिखा है, देखो ए एक्स बी वाई सॉलिड। तो ए जो है इसके x मोल्स और b के y मोल्स ले लिया हमने। अब ये जो x मोल्स हैं a के, तो क्या हो जाएगा, a का y पॉजिटिव पॉइंट बनेगा और b का x नेगेटिव, है ना। वो कितनी है विसरा लुआनियाँ। तो नाउ इसको अगर मुझे S उसकी सॉलिबिलिटी है, अगर S इज सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो KSP क्या होती है, solubility product, that is equal to product of the concentration of the ions raised to power their stoichiometric coefficients, इसकी पावर x और इसकी पावर y। तो a y पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एक्स एस रेज टू पावर x और y s रेज टू पावर y। तो x रेज टू पावर x हो जाएगा इंटू y रेज टू पावर y इंटू s रेज टू पावर x प्लस y। तो जैसे Al2SO4 थ्राइस है, तो इसमें 2 एल्यूमिनियम है और 3 क्या है, सल्फेट। तो 2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। Let us say X is solubility of salt. So it become 2x और ये हो गया 3x। तो KSP इक्वल टू 2x रेज टू पावर 2 और सल्फेट हो गया 3x रेज टू पावर 3। सो इट इज 108 इंटू x रेज टू पावर 5। और x इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाई 108 रेज टू पावर 1/5। Now solubility of any acid in its salt। तो देखो let us say HA कोई एसिड है, वीक एसिड। सो HA इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस एंड An नेगेटिव। तो लेट अस से कि दोनों की जो सॉलिबिलिटी है वो XX है, और सोडियम सॉल्ट जो है उस एसिड का, उसका क्या हो गया, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, दैट इज Na प्लस A नेगेटिव। 0.1 है तो ये भी 0.1 0.1। तो इसका मतलब H प्लस कितने हो जाएंगे, X, और A नेगेटिव कितने हो जाएंगे, X प्लस 0.1। तो हमेशा याद रखना कि सॉलिबिलिटी जो है, मतलब X जो है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। सो इट बिकम्स 0.1 ओनली, X बिकॉज X इज वेरी वेरी लेस देन 0.1।
So KSP is H plus G beta. Sir, A minus X plus 0.1 कैसे हो? Actually it is X plus 0.1, बट होता क्या है कि जब वीक एसिड होता है ना तो उसकी जो ये वैल्यू है X की, डिसोसिएशन बहुत ही कम होती है। तो X जो है वैल्यू बहुत ही कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज पर माइनस में भी, है ना। तो दैट इज ऑलवेज लेस देन 0.1, वेरी वेरी लेस, so that can be neglected. Means X is negligibly small. X is negligibly small. That's it. इसलिए तो X हो जाएगा KSP अपॉन 0.1. तो ये क्वेश्चन है, for a concentrated solution of a weak electrolyte A2B3, इसकी concentration है C और degree of dissociation है अल्फा, तो आपको फाइंड आउट करना है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कैसे करेंगे? यू नो A2B3 जो है दैट गिव्स 2A3 प्लस एंड 3B2 नेगेटिव। अब इनिशियली लेट अस से कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2B3 C और ये 0 0 होगी, तो इक्विलिब्रियम पे ये C में से कितना कम हो जाएगा? C अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? डबल 2C अल्फा, और ये 3 टाइम्स 3C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा? A3 प्लस की पावर 2, B2 नेगेटिव की पावर 3 डिवाइड बाई A2B3। तो 2C अल्फा रेस्ट पर 2 हो जाएगा, 3C अल्फा रेस्ट पर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। इस तरह से जो नीचे वाला अल्फा है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये हो जाएगा C। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये देखो ऊपर 4C² अल्फा स्क्वायर इंटू 27C³ अल्फा क्यूब और डिवाइडेड बाय C, क्योंकि 1 माइनस अल्फा इज 1, तो C से एक C कैंसल, तो हो जाएगा 108 C रेस्ट पर 4 अल्फा रेस्ट पर 5, और दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस तरह से अल्फा 5 हो जाएगा के इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 108 इंटू C4। तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है, एट 600 केल्विन 2 मोल ऑफ NO आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ O2, और ये रिलेशन दिया है। तो रिएक्शन अकरिंग एज अबव that comes to equilibrium under a total pressure of 1 atmosphere. So analysis of the system shows that 0.6 mole of oxygen are present at equilibrium. Then equilibrium constant for the reaction is, तो आपको equilibrium constant निकालना है for this particular reaction। तो देखो कैसे शुरू करेंगे कि 2NO है प्लस O2 टू गिव 2NO2, 2 मोल ऑफ NO react with 1 मोल ऑफ O2, ये दोनों दे मिक्स किए 2 मोल NO के और 1 मोल
O2 के, और रिएक्शन हुआ और प्रेशर हो गया टोटल 1 एटमॉस्फेयर, मतलब टोटल प्रेशर है उसका तब 1 एटमॉस्फेयर, और सिस्टम की एनालिसिस की तो क्या शो करता है कि 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो पहले थे NO के 2 मोल, O2 के 1 मोल। इक्विलिब्रियम पे ये हो गया इनिशियली। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि O2 के अगर 0.6 मोल बचते, इसका मतलब इसके कितने मोल कम हो गए? 0. तो इसके कितने कम होंगे? 0.8, क्योंकि अगर O2 का 1 मोल कम होता है तो NO के कितने मोल कम होते हैं? 2। इसलिए ये हो जाएगा 1.2, और ओवरऑल जो है, क्योंकि इसके अगर 2 मोल 1 मोल कम होता है तो इसके 2 मोल फॉर्मेशन होते हैं, तो 0.4 मोल कम हो तो ये कितना हो गया? 0.8। तो इससे आपको क्या मिल गया कि टोटल मोल्स ऐड कर लो सबको, 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8, तो 1.4 1.2 2.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ NO। तो NO के जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 1.2 डिवाइड बाई 2.6, और O2 के जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.6 डिवाइड बाई 2.6, और NO2 के अगर मोल फ्रैक्शन की बात करोगे तो दैट इज 0.8 डिवाइड बाई 2.6। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन आ गए तीनों के, और पार्शियल प्रेशर जो है NO का वो कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर तो 1 ही है, तो मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। तो इसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ NO आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आ गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है फॉर्मूला? partial pressure of NO2 raised to 2 divided by partial pressure of NO raised to 2 into partial pressure of O2। तो सबके partial pressure जो है वो we have। तो इस तरह से रिलेशन में फिट कर दी सारे वैल्यूज, एंड वी गेट वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2, 1.93 आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम A gas to give B gas plus half C gas, जो रिलेशन है बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट K, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट P, दैट इज गिवन बाय। तो देखो ये रिलेशन है A गैस टू गिव B गैस प्लस हाफ C गैस। हमने स्टार्ट किया विद 1 मोल ऑफ A, तो ये 0 होगा इनिशियली। इक्विलिब्रियम पे लेट अस से अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो A क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा, एंड दैट इज B इज अल्फा एंड C इज अल्फा बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, और 1 प्लस अल्फा बाई 2, और A, B और C के नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं इक्विलिब्रियम पे। तो पार्शियल प्रेशर जो A का है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू P, दैट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन टू अस।
partial pressure of B alpha upon 1 plus alpha by 2 into P, partial pressure of C alpha by 2 divided by 1 plus alpha by 2 into P। तो ये वैल्यू सारी हमने फिट कर दी, क्योंकि क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर हाफ डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इस तरह से ये जो Kp है दैट इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर 3/2 इंटू पी रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा रेज टू पावर 1/2। तो ये रिलेशंस आए। तो इस तरह से इसमें से कौन सा रिलेशन बना था? Sir, option B. ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज PCl5 dissociates as PCl3 and Cl2। PCl5 के हमने 5 मोल लिए एंड दे आर प्लेस्ड इन 200 लीटर वेसल, और जिसमें कितना है 2 मोल्स ऑफ N2 and is maintained at 600 Kelvin. Equilibrium pressure is 2.46 atm. So equilibrium constant Kp for the dissociation of PCl5 आपको फाइंड आउट करना और एज्यूम करना है आइडियल गैस बिहेवियर। सो PCl5 टू गिव PCl3 एंड Cl2, तो 5 मोल हैं PCl5 के, PCl3 और Cl2 के 0,0, 5 में से x मोल कम कर दिए PCl5 के, तो PCl3 के भी x मोल बने और Cl2 के भी x। तो मोल फ्रैक्शन जो है PCl3 का दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 7 प्लस एक्स। क्यों लिखा मैंने 7 प्लस एक्स, समझ आया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 माइनस एक्स हैं किसके? PCl5 के, x हैं PCl3 के। रिएक्शन में तो कोई N2 है ही नहीं। तो बट उस रिएक्शन वेसल में तो रहे ना वो गैशियस मोल, मतलब इनर्ट गैस डाली है ये, है ना? रिएक्ट ना तो वो रिएक्टेंट ना ही प्रोडक्ट, इट इज एन इनर्ट गैस। तो उसके मोल्स तो ऐड हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स की जगह क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स। तो मोल फ्रैक्शन आ गया तीनों का, PCl3 का भी, Cl2 का भी और PCl5 का भी। तो ये मोल फ्रैक्शन वी विल गेट, और x जो है डिवाइड बाय 7 प्लस एक्स, तो हाउ डू वी गेट दिस 3/10? ओके, ये वैल्यू आई और इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है 2.46। तो ये रिलेशन लगाया हमने PV इक्वल टू NRT। P जो है वो 2.46 है, V जो है वो 200 लीटर दिया है, N 7 प्लस एक्स है, R की वैल्यू 0.0821 है और T की वैल्यू 600 है। तो इसको सॉल्व करके x वी विल गेट, एंड x इज 3, और वो 3 वैल्यू पुट कर दी हमने। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आ गया।
तो ये तीनों प्रेशर्स हमने पुट कर दिए, पार्शियल प्रेशर्स, एंड वी गेट दिस वैल्यू। तो 1107 जो है इंटू 10⁻³ दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Question is, a solution is a mixture of 0.05 molar NaCl and 0.05 molar NaI. The concentration of iodide ion in the solution when AgCl just starts precipitating is equal to Ksp of AgCl is given, तो AgCl का Ksp जो है वो हमें दिया हुआ, ठीक है। तो उसके बेस पे हमें ये क्वेश्चन जो है ट्राई करना है, करोगे? सर ये समझ में नहीं आया कि concentration of iodine है, जब AG से precipitate करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कैसे पता चलेगा? एक मिनट, देखो सोल्यूशन है जिसमें मिक्सचर है किसका 0.05 मोलर NaCl, 0.05 मोलर NaI, और आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूशन में वो हमें फाइंड आउट करनी है जब AgCl जस्ट प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होता है। तो वो AgCl की Ksp दिया है 10⁻⁻10 और AgI का Ksp दिया है 4 × 10⁻16। अब Ksp, हाँ जी, हाँ रिएक्शन लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। जो अब हमारे पास देखो AgCl क्या है, Ag+ और Cl नेगेटिव। Ag+ जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें मान लेनी है कि लेट अस से वो x है। Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x, इसमें क्योंकि AgCl जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद Ag+ एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो AgCl में Ag+ को x मान लिया तो Cl नेगेटिव भी x होगा, सॉलिबिलिटी मान ली ना x AgCl की। तो जो Cl नेगेटिव है वो कॉन्सेंट्रेशन तो यहां से आ जाएगी 0.05। देखो ये जो NaCl दैट विल गिव Na+ एंड Cl नेगेटिव, ये 0.05 है। तो Ag+ तो x ही है बट Cl नेगेटिव कितना है, x + 0.05, और मैंने बोला था x कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इट इज 0.05 ओनली। तो उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया आपने। x की वैल्यू निकालने के बाद अब हमारे पास है Ag+ और I नेगेटिव। तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 × 10⁻⁹। Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 × 10⁻⁹, और I नेगेटिव जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो 4 × 10⁻16 है। Ag+ यहाँ से आ गया तो
क्योंकि उसने बोला है कि कब आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, जब AgCl प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट करता है। तो हमने ये मान के चले कि AgCl प्रेसिपिटेट स्टार्ट होता है जब, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन x है, तो वही यहाँ पे भी होगी, तो वो कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पुट कर दी, और आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन आई 2 × 10⁻⁷। यस, इसमें डाउट है तो पूछो। यस बेटा, इसमें कोई डाउट? हेलो, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं इससे। A certain buffer solution contains equal concentration of X negative and HX, जो Ka है for HX, that is 10⁻⁸. तो what is pH of the buffer? So pH का मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, दिस इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। सो pKa की वैल्यू जो है वो आ गई 8, क्योंकि pKa क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka, और X नेगेटिव और HX की कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर है, तो log 1 क्या होता है, 0। सो pH इक्वल टू pKa एंड दैट बिकम्स pH 8। Question is Ka for HCN is 5 × 10⁻⁻10 at 25 degrees Celsius. For maintaining constant pH of 9, the volume of 5 molar KCN solution required to be added to 10 ml of 0.2 molar HCN solution is। तो देखो pH का फॉर्मूला लिख दो पहले, क्योंकि वीक एसिड दिया है आपको और उसका सॉल्ट दिया है, तो हेंडरसन इक्वेशन कौन सी लगेगी, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। अब pH है 9 और pKa जो है दैट इज pKa की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि Ka दिया हुआ है आपको, तो Ka इज 5 × 10⁻⁻10, तो pKa क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Ka, तो माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻10, तो इट इज 10 माइनस लॉग 5, तो 10 माइनस 0.699, दैट इज 10 minus 0.7, so it becomes 9.3। तो pH 9 है, pKa 9.3 है, प्लस लॉग सॉल्ट जो है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन एसिड। हाँ जी बेटा, सर वो कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिखिएगा। हाँ जी, सर कॉन्सेंट्रेशन को 5 सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बोल रहा है कि अगर मैंने कितना वॉल्यूम जो है 5 मोलर KCN सोल्यूशन चाहिए मुझे, ऐड करें 10 ml ऑफ 2 मोलर HCN सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, हम देखो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे ऊपर नीचे। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आप
यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन रख देते हो तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, है ना। और वॉल्यूम निकाल, हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने ऊपर लिख दिया V, लेट अस से वॉल्यूम ऑफ KCl रिक्वायर्ड इज V इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, सॉल्व किया इसको। तो V कम्स और टू बी अराउंड 2, कि एंटी लॉग ऑफ 0.3, log of 2 is 0.3, log of 2 that is 0.3, so that means anti-log of log, so that is 2, so anti-log of 0.3 is 2. The question is, in a saturated solution of the sparingly soluble strong electrolyte AgIO3, इसका मॉलिक्यूलर मास है 283, the equilibrium which sets in is AgIO3 to give Ag plus and IO3 negative. So if the solubility product constant KSP of AgIO3 at a given temperature is given, that is 1.0 into 10 raised to power minus 8. So what is the mass of AgIO3 contained in 100 ml of its saturated solution? तो देखो कैसे इसको अप्रोच करना है। पहले तो सबसे पहले आपने ये लिख दिया कि KSP of AgIO3 is Ag plus ion concentration into IO3 negative ion concentration. KSP is given 1 into 10 raised to power minus 8. Ag plus और IO3 नेगेटिव दोनों की, AgIO3 की सॉलिबिलिटी हमने मान ली S, तो S आ गया 1 इंटू 10 रेज पर माइनस 4। तो 10 रेज पर माइनस 4 मोल जो है AgIO3 के, दे आर डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर 10 रेज पर माइनस 4 मोल जो हैं दे आर डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 10 रेज पर माइनस 5 मोल जो है AgIO3 के, दे आर डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और AgIO3 का जो वेट है दैट इज 283 मॉलिक्यूलर वेट। सो इसका मतलब इट इज 283 इंटू 10 रेज पर माइनस 5 ग्राम ऑफ AgIO3 विच इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से इट बिकम्स 2.83 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 ग्राम। तो इतना करते हैं। आपके पास इक्विलिब्रियम के जो भी डाउट्स हों प्लीज डू सेंड मी। है कोई डाउट्स? जी बेटा। सर मैंने सीटीओ दिया तो आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, तो आप उसको ऑल एंड आउट ले सकते हो अगली क्लास में। अभी भेजा? नहीं सर, वाले पहले गया था। क्या था वो, किस किस चैप्टर का था? कितने क्वेश्चन है? क्लास तक हम भी इक्विलिब्रियम के डाउट्स ले लेंगे और आप दोनों डाउट्स ले लीजिए। हाँ तो ऐसा करो, हाँ 4 क्वेश्चन। एक मिनट मैं देख लेता हूँ।
क्या क्या नाम है? अंशु सर आप एक मिनट। अंशुमन के डाउट्स हैं। ओके, मिनट। कोई नहीं, तो मैं ऐसा करूँगा, इनको भी ले लूँगा नेक्स्ट क्लास में। आप ना स्टार्टिंग में ही बोल देना मुझे, है ना? ठीक है बच्चे, ओके, बस बाय।